Hi friends, good evening. Although you must be wondering why I am here, I was supposed to be on Facebook live platform today for the third edition of Khel Kala with Voice of Sky. But I think Instagram did not wanted that I use any other platform. So instead of Facebook, we are back to Instagram because of some technical issues that I am facing on my end, getting my guest Mr. Matvinder Singh to join. But now we will do the same session, the third edition of Khel Kala with Voice of Sky here in Instagram today. And I already have my guest for the day, and very soon we will start. So here we go. Soon we gonna be. I'm just waiting Mr. Matvinder to be live with me. It's going to be a very interesting and fun-filled, interesting session that we will be having today. I have so many of memories with Matvinder, and it will be like a pleasure to have him. And here we go. We have the coach with us. कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? Very good. First of all, extremely sorry that जो technical barriers आए and we have to shift at the last moment कि हम Facebook से Instagram पर आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें at the last moment because few of our friends जो हर एक from India or outside they wanted us to see today in the scheduled timing. So I think आज हम करते हैं and then again we will have you once more Facebook पे भी जब हमारा resolve हो जाएगा issue. बिल्कुल सही है. Okay. Matvinder ji, as fondly known as Matti in cricketing fraternity, let me introduce him to all of you. It's like a decade back, 10 साल पहले जब हम almost मिले दिल्ली में and like there was a phase when we played cricket together for not less than अभी भी खेल रहे साथ में वैसे तो but as an aspiring professional cricketers for approx 4 or 5 years that we played together and it's my fortune that आप आज accept किया आपने मेरी request को और आप इस platform में आए तो उसके लिए thank you. ये वो platform है मतविंदर भाई जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो young kids हैं उनको influence करें और उनको influence करने के लिए जो अभी भी या फिर accomplished players हैं या coaches हैं या कोई artist है या फिर स्टिल अगर अकम्प्लिश थोड़े से कम भी हैं बट स्टिल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके सो दैट हम वो एनर्जी एक नए जनरेशन पे इन्फ्यूज कर सके और उन्हें भी मोटिवेट कर सके. सो ये थोड़ा सा ब्रीफ था इस इनिशिएटिव के बारे में. काफी छोटा था. ह्यूमर स्पोर्ट्स पर्सन का ह्यूमर आप यू कैन नॉट बीट इट. सो आई एम रेडी फॉर इट थ्रू आउट द सेशन. इम्पोर्टेंट. So let's start with the session. I will call you as Matti bhai because that's how मैं हमेशा आपको बुलाता था. तो Yeah, you're my. Matti bhai, let's start the session with a brief introduction or maybe a grand one also. I'm not saying कि brief ही रहे. आपके बारे में हमारे viewers को बताइए like how your journey of cricket started बचपन से and slowly आपको कब लगा कि like I have to pursue it as in professional level, please. जैसे सबकी फैमिलीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं स्टार्टिंग नहीं करनी है, पहले स्टडी हो जाए, पहले 10th हो जाए, फिर उसके बाद 12th हो जाए. तो मेरी फैमिली में भी थोड़ा वैसे ही था. मैं पैशन तो शुरू से ही था बट स्टडी प्रॉब्लम होती है सब में, हर फैमिली में होती है. तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, आफ्टर 12th विल स्टार्ट. तो मेरी फैमिली ने फिर अलाउ भी कर दिया खेलने के लिए. तो मैं एक समर कैंप में गया था, मेरा इंटरेस्ट था, पैशन था. तो जैसे नॉर्मली समर कैंप होते हैं तो मैं एक जगह पे गया समर कैंप पे. वो एक गवर्नमेंट का समर कैंप था क्रिकेट का. तो वो मैं वहां पे गया फिर और बाय चांस मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी. मतलब एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत मतलब एक दिख जाती है कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स पर्सन है और नेचुरल कुछ टैलेंट है जी. तो आई वाज वन ऑफ देम. तो उन्होंने नहीं, आप हम्बल हो रहे हो, आप हम्बल हो रहे हो कि बाई चांस नहीं, वो आप में था. तो मैंने खुद देखा है. तो फिर वो उन्होंने जो मेरे कोच थे
उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम्हें रेगुलर खेलना चाहिए, तो मैंने कहा सर अभी तो मैंने 12th की है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, कॉलेज में क्रिकेट खेलो, कॉलेज के साथ साथ जो क्लब क्रिकेट है वो भी खेलो, और आगे जो प्रोफेशन है वो भी चलता रहेगा। तो आई सेड देन इट्स ओके। तो स्टार्ट वहां से मेरी जो क्रिकेट की जी। जर्नी है वो स्टार्ट हुई। तो उसके मोती भाई, बाद जैसे फिर आपने बताया कि, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीजें कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे अपने जी व्यूअर्स के लिए। एज यू सेड कि यू स्टार्टेड प्रिटी लेट, मतलब 12th के बाद एक तरीके से आपने ऑन रेगुलर बेसिस इसको मतलब फैमिली सपोर्ट के साथ परस्यू किया। ऑब्वियसली यंग स्कूल डेज से ही आपने खेलना स्टार्ट कर दिया होगा फॉर श्योर, लेकिन या एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वो 12th के बाद आपने शुरू किया, राइट? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो क्रिकेट के बेसिक्स है वो लर्न करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। बट जी। अगर आप फिजिकली और मेंटली मेच्योर हो तो आप वो काफी जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो मैं ये नहीं हम्म। कहूंगा कि अगर कोई कोई भी स्टूडेंट, कोई भी किड आफ्टर 12th स्टार्ट करता है तो हम्म। उसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप अगर इवन अनिल कुंबले और आई थिंक और भी कोई क्रिकेटर्स है जिन्होंने आफ्टर 12th स्टार्ट करिए और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और अच्छा सर्वाइव भी किया उन्होंने। बिल्कुल तो बिल्कुल। एज मैटर नहीं करता, आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक आरपी सिंह भी काफी लेट स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने भी बहुत अर्ली स्टार्ट नहीं था उनका भी, जैसे हाँ, अनिल कुंबले का आपने बताया। एग्जैक्टली exactly. और आई थिंक राहुल द्रविड़ ने भी लेट स्टार्ट की थी। सो तो एज मैटर नहीं करता। जैसे मती भाई आप कह रहे हैं कि लाइक एज मैटर नहीं करता, ऑब्वियस बात है, ये एक वन ऑफ द एट्रीब्यूट भी है स्पोर्ट्समैनशिप, जो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि देयर इज नो या एज बैरियर। आप अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप अर्ली नहीं भी कर पाते तो लेट भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वो पैशन, वो डेडिकेशन, वो डिवोशन और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा आई थिंक एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है कि जब भी आप करें तो यू हैव टू बी लाइक फुली इनटू इट। ऐसा नहीं कि आप पार्शियली इन्वॉल्व हो और पार्शियली आप डिस्ट्रैक्टेड किसी और साइड में कि मैं कुछ और भी कर लेता हूँ। हाँ नहीं, मतलब अगर आप लेट कर रहे हो तो आपको 100% उस फील्ड में देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आफ्टर 12th स्टार्ट किया तो मैंने कॉलेज क्रिकेट खेली है, क्लब हम्म। क्रिकेट खेली है, कैंप्स वगैरह, आउटडोर टूर्नामेंट्स हो गए, ऑल ओवर इंडिया टूर्नामेंट्स हो गए, जो भी दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें था मैं। तो अगर आप 100% नहीं होंगे तो आप फिर वहां तक भी सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। आपको ये, आप ये बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरी तीनों साल अटेंडेंस शॉर्ट थी, क्योंकि मैं पूरे दिन ग्राउंड में रहता था। मतलब हमारे कॉलेज की जो प्रैक्टिस है वो कितने 3 घंटे की होती थी या 2.5 घंटे की होती थी, एक्सेप्ट दैट मैं पूरे दिन ग्राउंड में रहता था। जी। तो उससे पहले मतलब जैसे अपना होता है कि हाँ यार मुझे जाके थोड़ी फिटनेस करनी है या वर्कआउट करना है या थोड़ी नॉकिंग करनी है, तो मेरा जो था बहुत एक्स्ट्रा था। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, पैशन के साथ साथ डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा थी। मे भी शायद बट इसीलिए मैं आज एक कोच हूँ। किड्स, मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी आप एस्पायरिंग क्रिकेटर्स इसको देखे बाद में इन रिकॉर्डेड फॉर्म और एज वेल, बिकॉज मती भाई ने काफी लेट स्टार्ट किया था, इसलिए ही हैड टू स्किप फ्यू क्लासेस, बट दैट इज नॉट समथिंग वो खुद भी इसे प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही मैं करता हूँ। स्टडीज अपने साइड में एंड साथ ही साथ यू कैन परस्यू योर पैशन फॉर स्पोर्ट्स। तो आपका क्या कहना है मती भाई इस बारे में, मतलब कि स्टडीज के साथ भी स्पोर्ट्स का पैशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी इंजीनियर्स या मीन्स आपके बीसीए किए हुए प्लेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं। ऑब्वियसली आकाश, स्टडी इज मस्ट। विदाउट स्टडी भी स्पोर्ट्स में अगर आप फैमिली को लेके चले तो फैमिली भी विदाउट स्टडी सपोर्ट नहीं करती है। तो बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में हो, फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही होता है। तो आई थिंक हमें स्टडी भी उसके साथ साथ कैरी करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। एजुकेशन कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकनी चाहिए। आई थिंक एक चीज जो बहुत जो यंग लड़के होते हैं उनका मिसकंसेप्शन होता है या मे बी लैक ऑफ गाइडेंस होता है कि कहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाना इज मोर अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, बट शायद स्टडीज जो है वो मेंटल एस्पेक्ट में आपको बैक और आपको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हाउ यू नीड टू बी मेंटली टफ एज वेल, फिजिकली के साथ, मतलब फिजिकली टफ होने के साथ यू हैव टू बी मेंटली टफ सो दैट आप अपने किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सके। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर आप हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं तो हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे, कई बार हमें वो चीज़ आउट लगती है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो कभी कभी हमें डाइवर्ट भी होना पड़ता है। तो हम्म। स्पोर्ट्स, मैं ये नहीं कहता कि सबको स्पोर्ट्स क्रिकेट ही खेलना चाहिए, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आउटडोर राइट। गेम्स खेलिए या इंडोर गेम खेलिए, तो उससे माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। हम्म। तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में भी आपको माइंड फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है।
और उसी का आपको शायद इफेक्ट भी मिलता है स्टडी पे, क्योंकि स्टडी पे हम शायद थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं बट उसका इफेक्ट हमें डबल मिलता है। राइट। अच्छा मोती भाई, मतलब हम थोड़ा सा मतलब अभी जस्ट वी जस्ट स्टार्टेड विद द सेशन। एक चीज जो डेफिनेटली मैं स्टार्टिंग में ही रखना चाहूंगा, जो चेंज आया है क्रिकेटिंग प्रैक्टिस में फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। लाइक हम जो 10 साल पहले हमारा जो एक लेआउट होता था या फिर जो हमारा एक प्लानिंग होती थी, कितना चेंज आ गया। बिकॉज यू नो अब बहुत एग्रेसिव हो गया स्पोर्ट्स एंड देयर इज लाइक सो मच चेंज। तो उसको आप वो उस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं आप? या आकाश, ऑब्वियसली है, क्योंकि जो जनरेशन हो रही है और जो क्रिकेट में रेवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब हमारे टाइम पे जो होता था कि हाँ 10th के बाद या 12th के बाद कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है तो फैमिली अलाउ कर देती है। आज का जो जी टाइम है उसमें बच्चा 7 से 8 साल का बच्चा होते ही क्रिकेट में शुरू कर देता है। तो अब मैं अकेडमी में जाता हूँ, मेरे पास पर्सनल कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास, मैं सबके पास 18 से 20 साल के बच्चे होते ही होते हैं, बट मेरे पास 9 से लेके 14 साल तक के बच्चे कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब इट मीन्स कि हाँ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में रहे, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, जिससे उनका माइंड भी मेच्योर होगा। आजकल काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है पढ़ाई में रहते हैं, स्टडी में रहते हैं, या फिर जैसे आजकल टैब वगैरह में रहते हैं बच्चे, तो उनका जी। वो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आजकल जो पेरेंट्स है वो खुद अलाउ कर रहे हैं कि स्टडी के साथ साथ बच्चे को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वो चाहे क्रिकेट हो चाहे हम्म। फुटबॉल है, वhatever, और ये नहीं, जरूरी भी है। और वो फिजिकल एक्टिविटीज इन इन अ वे इट आल्सो हेल्प्स कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग होते हो। बिकॉज मैंने अभी एक मतलब फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया था कि वी हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ टॉपिक से। लाइक कोरोना जो हमारा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, एंड देयर सो मच ऑफ एडवर्सिटी और थोड़ा सा नेगेटिव माइंड फ्रेम लोगों का बहुत हो चुका है और कि काम नहीं हो रहा है। बट इस टाइम पे अगर एक एक आपने अर्ली एज पे कभी स्पोर्ट्स खेला हो या कुछ टीम टीम बॉन्डिंग वाली एक्टिविटीज की हो, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि नहीं, देयर इज अ ब्राइटर सन अदर साइड। आप दूसरे साइड जाकर एक नया सवेरा का जरूर आप देख पाओगे, एक पॉजिटिव अप्रोच होता है उनका। तो आई थिंक वो बिल्कुल सब बिल्कुल। चीजें भी स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं अर्ली एज में, वो आपको हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल, आई एग्री। मती भाई, तो थोड़ा सा फनी वे में हम चाहते हैं आपके अर्ली एज जो आपने जब 12th के बाद स्टार्ट किया, तो मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने खुद फेस किए हैं। मैं ये आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि मतलब मैं भी एक टाइम पे चाहता था कि तिरंगे के लिए खेलूं, अपने देश के लिए क्रिकेटर बनूं। एंड हमारा एक म्यूचुअल ड्रीम था कि हम दोनों खेले। एंड एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, द फर्स्ट पेपर कटिंग दैट आई हैड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन क्रिकेट, वो इन्हीं के साथ था, व्हेन ही गॉट 5 विकेट्स एंड आई गॉट 4 विकेट्स इन वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव गेम्स। सो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, एक मेमोरेबल मोमेंट हमारे लिए रहा है। वो मैच हम हार गए थे। आई थिंक ये नहीं बोलना था। बट हम दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी हमारी टीम राइट। के लिए। लिटरली आई थिंक वो विकेट भी इतना कंड्यूसिव नहीं था। आई थिंक उत्तम नगर, अगर आपको याद हो, या सो दैट वाज द ग्राउंड जहाँ पे हमने वो किया था, एंड इट वाज वेरी फ्लैट विकेट बहुत। विकेट। तो या हाँ मती भाई, तो मैं ये पूछ रहा था कि उस टाइम की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपके होंगे एज अ एज अ बडिंग क्रिकेटर और एज एन एस्पायरिंग, जो हाँ कुछ करना है मुझे क्रिकेटिंग फर्टिलिटी पे, पर साथ साथ कुछ फन भी हो रहा हो आपके साथ, लाइक किसी कैंप में किसी ने कोई मस्ती कर दी, कोई प्रैंक कर दिया। या जैसे मतलब सबके साथ होता है कि हाँ हम एकेडमी में नए थे, हमारे सारे सीनियर्स थे, जो कुछ रणजी ट्रॉफी है, कोई स्टेट प्लेयर है, जी कोई सर्विस से खेल रहा है, कोई रेलवे से खेल रहा है। तो हमारे साथ काफी प्लेयर थे ऐसे। जी। हम जब खेलने जाते थे तो हमें अच्छा ये काम करो, अच्छा वो काम करो, वहां से बॉल लेके आओ, तो मतलब जैसे सब सीनियर होते तो जूनियर को काम बताते ही है, तो वो सब राइट। बहुत करना। बट दैट इज द पार्ट ऑफ अ गेम, सबको करना पड़ता है। जैसे नहीं, लेकिन दैट फिर दैट हमने, इज ऑल्सो इन अ वे, आप अगर इसको पॉजिटिव वे में देखो तो मैं इसको इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि आपके अंदर पेशेंस बिल्ड करता है। आप यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ बिग थिंग्स कि आपको यूं ही मिल जाएगी, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। की बजाते काम नहीं होता। जी तो जी। आपको हाँ, स्पोर्ट्स है, पूरा लाइफ वाला काम है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
मती भाई, इस बीच आपके हमारे किसी मित्र ने लिखा है मती भाई इज ए लेजेंड एंड प्रोफेसर 3 ओ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ही इज थैंक अ यू सर। लेजेंड एंड मतलब हमने साथ में जो साल गुजारे हैं खेलते हुए ऑन ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड भी, आई कैन से कि इस तरीके से हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन। और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन को, जो बडिंग जनरेशन को, मतलब छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इनसे बेहतर कोच दिल्ली एनसीआर में शायद कुछ हैं, बट मेरा पर्सनल बायस मैं ओपनली बोल सकता हूँ वो मती भाई की तरफ है। सो थैंक यू आकाश। पेरेंट्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, अगर आपको लगता है कि आपके किड में थोड़ा सा भी पैशन है क्रिकेट को लेकर, प्लीज आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाए। फेसबुक पे ही इज मोस्ट एक्टिव, सो आप इनको फेसबुक पे मिल सकते हैं। बाद में शायद अगर आप अपना नंबर भी शेयर कर दें आज के सेशन में, तो शायद पेरेंट्स आपको कैन अप्रोच देम इफ दैट गोज वेल विथ यू, आपके साथ। तो शायद आप उनको हेल्प कर सके, उनके बच्चों को किस तरीके से आगे गाइड करना है क्रिकेट के लिए। मैं आकाश एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने बोला कि छोटे बच्चों के जो कोच है वो, तो ये जी एक राहुल द्रविड़ सर ने एक बात बोली थी जी, कि छोटे बच्चे को सिखाना जो टफ है, एक बड़े बच्चे बिल्कुल। को, एक मेच्योर बच्चे को सिखाना बहुत ईजी है। बट हम्म, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो छोटे बच्चे को क्रिकेट सिखा सकता है ना, वो दुनिया में किसी भी बच्चे को क्रिकेट सिखा सकता है। और वो चीज अग्रीड। मैं आज बिल्कुल अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, और मैं समझता भी हूँ कि जो बच्चे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं वो लिटरली बड़े बच्चों को बहुत इजीली समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे पे हमें फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी वर्क करना पड़ता है, हमें अपने बच्चों को समझना पड़ता है, स्टूडेंट को समझना पड़ता है कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है। वही चीज हम बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, बड़े मेच्योर होते हैं मेंटली भी और फिजिकली, तो वो जी, चीज बहुत इजी हो जाती है। और छोटे बच्चों के साथ अगर हम हैं तो डेफिनेटली हमारा पेशेंस बहुत इंक्रीज होता है। और छोटे बच्चों के साथ अगर हमें ट्रीट करना है तो पेशेंस रखना भी पड़ेगा। बट मैं आपको सीधे से बताना चाहूंगा कि मुझे जी। छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना, उन्हें कोचिंग देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत पहले से था, इफ आई रिकॉल, व्हेन आप जो वो सीनियर ग्रुप में थे, हम जहाँ पे साथ में खेलते थे जिस क्लब में, तो व्हेन इट कम्स टू टू हेल्प एंड गाइड द यंगर ग्रुप जो था, उसमें आप हमेशा होते थे तो उस नेट पे। तो मैंने आपको उस नेट पे बहुत साल देखा है, तो शायद मेरे ख्याल से शुरुआत वहीं से हो गई थी। खुद भी खेल रहे थे हाँ साथ में, छोटे जनरेशन को भी आप सिखा रहे थे, अंडर 14 एंड 16 के लड़कों को। हाँ, जैसे मतलब मैं अंडर 19 और अंडर 23 के ग्रुप में था, तो हमारी जो एकेडमी के भी छोटे बच्चों के ग्रुप थे, तो कई बार मुझे बोल देते थे मती आप उन बच्चों को हैंडल करो, उन बच्चों, तो मैं उन बच्चों के साथ मतलब, अब जब पेरेंट्स साथ में खड़े हुए हैं देख रहे हैं कि कोच क्या कर रहा है या फिर जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, तो सब बोलते थे कि वो छोटे बच्चों को बहुत अच्छी से ट्रीट कर रहा है। और उन बच्चे एक अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो उनका सेशन बेकार जाता है, तो वो मेरे साथ बहुत एंजॉय करते थे और मैं भी एंजॉय करता था। तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई बर्डन नहीं होती थी। इवन मैं बहुत खुश होता था कि हाँ, मेरा जो आज का दिन है वो सक्सेसफुल गया और मेरी वजह से जी। बच्चे खुश थे। मती भाई, मैं इस बीच आपको ये बता दूं कि हमारे दोस्त इंडिया से जुड़े ही हैं। साथ में वी हैड फ्रेंड्स फ्रॉम म्यांमार, मॉरिशस, और अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूं तो फ्रेंड्स जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। एंड या इन बिटवीन हमारे कुछ फ्रेंड्स, मतलब फ्रांस से भी ज्वाइन इन किए थे, एंड एक दो फ्रेंड्स हमारे ट्रिनिडाद टोबैगो से, जो कैरिबियन, मतलब वेस्ट इंडीज के पास। तो जहां जहां क्रिकेट है और जहां नहीं भी है, वहां से भी हमारे गेस्ट आए हैं। थैंक यू टू एवरीवन, और हम कोशिश करेंगे दैट वी स्प्रेड अ लॉट ऑफ पैशन एंड लव फॉर क्रिकेट आज के सेशन के थ्रू। एंड आपको अगर कोशिश मीन्स मेरे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मे बी एक दो सेशन हम और करें, बिकॉज 50 मिनट्स 45 मिनट्स में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मती भाई, हम आपकी कोचिंग जर्नी से एक बार फिर से प्लेयर वाले जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे सीजन्स आपने कॉम्पिटिटिव डीडीसी, ये जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, तो उसके लिए काफी सारे लीग्स आपने खेले। एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन जो आपके दिल के बहुत करीब है, और कोई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहो सबके साथ। हाँ, मैं अंडर 19 था उस टाइम पे। तो मैं अंडर 19 के ट्रायल में भी था, कैंप में भी था। तो जो डीडीसी की लीग होती है वो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट लीग होती है। जी। तो स्टेट से खेलने के लिए आपको पहले जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्लियर करना होता है। राइट। तो मेरा जो क्राइटेरिया था, एक लेफ्ट आर्म बॉलर और बैट्समैन था मैं। तो मेरा एक जो बॉलर का टारगेट था वो था, आई थिंक 30 विकेट्स थे और 250 रन होते हैं। बट हम्म। मेरा उस टाइम पर 35 प्लस विकेट्स थी और 300 प्लस रन थे।
जी बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, कुछ चीजें थी जो कमी रही। जी। बट मैंने हार नहीं मानी, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं किया कि देन इट्स ओके, ठीक है, आगे खेलते हैं, आगे करते हैं। तो आई थिंक मतलब वो पर्टिकुलर सीजन आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, मतलब मुझे लगा था कि हाँ, अगर मैं उस टाइम पे क्लिक हो जाता तो मे बी आज मैं किसी अच्छी जगह पे होता और मे बी इंडिया के लिए खेल रहा होता। नहीं भाई, स्टिल आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, वी नो इट बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन एट सम टाइम कि देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइक इंडिया की पॉपुलेशन हमें सबको पता है, दिल्ली में ही 150 से ऊपर रजिस्टर्ड क्लब हैं। हर क्लब में इट्स एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चे खेलते हैं। सो इफ वी कैलकुलेट ऑल्सो, द मैथ इज नॉट दैट इजी। अल्टीमेटली खेलेंगे 11 ही। सो इट डजेंट मीन कि जो नहीं खेल रहे हैं वो कहीं लैग कर गए। इट्स जस्ट दैट कुछ प्लस माइनस होता है। एंड बट स्टिल, बीइंग अ पैशनेट क्रिकेट फॉलोअर्स हम दोनों, आज मैं इस सेशन के थ्रू और आप अपनी कोचिंग के थ्रू, हम वापस कुछ क्रिकेट को देना चाह रहे हैं। यू नो वेरी वेल के क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। we'll ignore that, we will ignore that in the session. वरना फिर हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल। और मतलब आपके तो प्रोफेशनली ये भी काफी क्लोज है, बिकॉज मती जी इज ऑल्सो बाई प्रैक्टिस, ही हैज कंप्लीटेड हिज एडवोकेसी की स्टडीज उन्होंने कंप्लीट की। एंड आई थिंक अब आप मैजिस्ट्रेट की स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। सो किड्स, आप ये भी देख सकते हो एक तरीके से, एंड फ्रेंड्स एवरीवन, कि at one side he is trying to build the passion of cricket and prepare cricketers for the next generation, but at the same time he is also continuing his professional studies and career wise on the other front. So जो बैलेंस करना होता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हाउ यू विल से कि अपने किड्स, अपने स्टूडेंट्स को, कि किस तरीके से वो बैलेंस करे बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज? इस चीज में आकाश हमें बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप पैशनेट है तो आप मतलब आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज आप प्रैक्टिस कर रहे, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे, जो आपके पास नाइट का टाइम है वो आप स्टडी में कर सकते हैं। अगर आप, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ने की बहुत अच्छी हैबिट होती है, जी और वो जी। बहुत अच्छी बात है, और पेरेंट्स भी काफी बोलते हैं कि हाँ, मॉर्निंग की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी रहती है, बच्चे जो है वो भूलते नहीं है। तो अगर बच्चों को आफ्टरनून में, इवनिंग में या नाइट में टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के स्कूल से पहले अगर 1-2 घंटा पढ़ भी लेते तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो टाइम है वो भी सेटल हो जाता है कि हाँ, हम स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है और स्टडी में भी इन्वॉल्व है। तो आई मती थिंक भाई, ये। वी विल गो बैक टू योर दैट पर्टिकुलर सीजन जहां पे आपने इतने विकेट्स लिए एंड रन भी बहुत खूब बनाए। तो दो चीजों पे जो मैं एकदम फोकस करना चाहूंगा उस सीजन को लेकर, बिकॉज मैं भी पार्ट था उसका। तो लाइक वो शेड्यूल क्या था आपका? लाइक हाउ मच यू यूज टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग दोज डेज? जो आप अपने स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहेंगे, लाइक डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ, हाउ मच आवर्स यू यूज टू गिव एवरी डे, कितने घंटे? एंड साथ में ही एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मे बी आप दोनों का आंसर साथ में दे सकते हो, कि व्हेन इट कम्स टू योर बैटिंग, ऑलरेडी हमारी टीम स्ट्रगल कर रही होती थी। सो आप उस पॉइंट से उठा के नेक्स्ट स्टेज पे ले जाते थे, एंड वी यूज टू रीच आइदर चेजिंग में, हम कभी कर पाते थे कभी नहीं कर पाते थे। और जब पहली बैटिंग करते थे तो लाइक काफी स्ट्रगल के वक्त, क्योंकि आप 4 डाउन, थर्ड डाउन, फिफ्थ डाउन खेलते थे, तो वहां पे आके इनिंग्स को दोबारा रीबिल्ड करना कितना मेंटल टफनेस उसके लिए लगता है? तो इन दोनों सवालों को मैं आंसर आपसे चाहूंगा, किस तरीके से आपने प्रिपेयर मैं किया था उसके लिए? बैक से स्टार्ट करूंगा कि मैंने, जब मैं उस टाइम पे था, मैं अपनी ग्रोथ स्टेज पे था, तो मेरे जो सीनियर्स थे मैंने उनसे पूछा था कि आप मतलब बैटिंग करते हो, जब क्रीज पे होते हो, विकेट पे होते हो और आपसे रन नहीं बन रहे होते हो, तो आप क्या सोचते हैं? जी तो मेरे सीनियर ने बोला कि यार मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस बॉल को कैसे टैकल करूंगा, इस बॉलर को कैसे टैकल करूंगा, मुझसे रन नहीं बन रहे, मुझे आउट भी नहीं होना, मुझे रन भी बनाने हैं। तो मैं एक चीज राइट। बोलना चाहूंगा कि जब कोई भी बैट्समैन ज्यादा पजल होता है तो हमेशा उससे बॉल मिसजज होती है। अगर आप कूल माइंड से या बिल्कुल रिलैक्स होकर बैटिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब एक बैट्समैन था, हमारे बैच का था, मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों होते हो, तो उसने बोला यार मैं बीट हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो बीट होना, इट डजेंट मैटर कि हाँ, सामने वाला बॉलर है, अच्छा बॉलर, तो वो बीट करेगा,
बट आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम बीट हो गए तो हमने हार मान ली? बैट आपके पास है, आप नॉट आउट है, आप 2-3 बॉल खेल के फिर रन बनाइए। तो ये जो राइट, मैच्योर, मेंटली मैच्योर होना बहुत जरूरी है रन बनाने के लिए। और आजकल की जो क्रिकेट है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब ये क्रिकेट जो है आजकल की जनरेशन की, वो फिजिकली और जो बैटिंग वैटिंग नॉकिंग वॉकिंग है, इससे बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया। अब आपको जो चाहिए वो मेंटली स्ट्रेंथ चाहिए। उसके लिए आप योगा करते हैं, मेडिटेशन बिल्कुल, करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अब जो काम हो गया है वो ये कि फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप फिजिकली कितना फिट हो, आप मैच में सरवाइव कर ही नहीं सकते। राइट, अगर आप बॉलर है, आपने पहली बॉल पे एक बाउंड्री खा लिया, किसी ने अच्छा चौका मार दिया, बाउंड्री मार दी, तो आप नेक्स्ट बॉल पे क्या करोगे? उसके लिए आपको अपना माइंड सेटल करना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। जी, अदरवाइज बॉलर क्या करते हैं, पजल हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो नई नई चीज करते हैं, वाइड फेंक देंगे या शॉर्ट बॉल कर देंगे, और उसके चक्कर में फिर वो और रन खाते हैं। तो राइट, ऐसी कंडीशन में आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। अब मैं अपने अपना एग्जांपल देता हूँ कि आपने बोला कि डूबी हुई नैया को पार लगाना था। तो मैं कोई पिंच हिटर नहीं था कि हाँ मैं आया 3-4 बॉलों में छक्के वक्के मारे और काम खत्म। मैं एक इनिंग बिल्ड करने वाला था। तो मैं जैसे 4 नंबर या 5 नंबर में बैटिंग करता था, तो मैं इजीली सिंगल डबल खेलता था, और मेरे जो पार्टनर होते थे वो मुझे इस चीज में बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी इस जी, चीज में बहुत अच्छे थे। सिंगल निकालना एक क्लास होती है आकाश, क्योंकि हमें बैट को जी, टिल्ट करना पड़ता है, स्पिन खेलना पड़ता है। स्पिनर खेलना बहुत टफ होता है, बट अगर किसी बिल्कुल, को स्पिन खेलना आ गया तो किसी भी बॉलर को खेल सकता है। विद द स्पिन खेलना, सिंगल रोटेशन करना, जिससे स्कोर कार्ड भी चलता रहता है, और बॉलर भी परेशान होता है कि उसकी 6 पे 6 सिंगल आ गए, वो क्या करे, वो रन कैसे रोके। तो ये जो सिंगल निकालने की क्लास है, ये हर एक क्रिकेटर में होगी अगर उसने गली क्रिकेट खेला होगा तो मैं बोलना चाहूंगा गली क्रिकेट एक किड के लिए, एक क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी है। एंड मती भाई एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं इस पे, लाइक अगर आपको वी में भी खेलना, स्ट्रेट खेलने के लिए भी गली क्रिकेट काफी बैट्समैन को हेल्प करती है, बिकॉज हाँ आपको सीधे ही मारना होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं कॉलेज टाइम पे था, मैंने क्रिकेट शुरू करी थी, तो हमारे घर के सामने एक गैलरी टाइप एरिया था। तो वो गैलरी बस इतनी सी थी, मतलब आप राइट, लगाएंगे तो 2 या 3 फुट की थी वो गैलरी। अब हम उसमें नॉकिंग करते थे, और क्या था, हमारे रूल्स क्या थे कि दोनों तरफ वॉल थी और उस पर डायरेक्ट लगना आउट था। आउट हो जाएगा। अगर आप उसके बॉल पे आउट नहीं हो रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो, टैप कर रहे हो या फेस खोल रहे हो, तो इट मीन्स आप सिंगल्स निकाल रहे हो। तो राइट, मैं मानना चाहूंगा कि जो मेरी सिंगल्स निकालने की, जो मेरी डिफेंस की क्वालिटी थी, वो उस गली क्रिकेट से ही आई है। मती भाई इस बीच कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं ताकि मतलब हमारे फ्रेंड्स भी कनेक्टेड फील करें। आई एम विटामिन सी, आई wanna प्ले क्रिकेट नाउ, आई मिस इट सो मच, विद दिस लॉकडाउन खत्म हो जाए जल्दी। बिल्कुल हम भी यही विश करते हैं। प्रोफेसर कंटिन्यूज टू बी सपोर्टिंग इन दिस सेशन। थैंक यू प्रोफेसर। आप सॉरी पर्सनली मैं आपको नहीं जानता, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई प्ले काउंटी क्रिकेट under the best coaches including Yen Bell and John Beston. But Mati Bhaiya has improved my batting the most. That's what we are talking about. Means I know, there has to be an emotional connect as well. सिर्फ टेक्निकल साइड में जाकर भी आप बहुत ज्यादा साउंड टेक्निकल हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको हर एक चीज बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हुए एंड देन आज तो आकाश फुल फॉर्म में है। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज योर फर्स्ट पैशन एंड सदाबहार लव। या यू नो इट्स इट एग्जैक्टली इट्स इन माय ब्लड, और वो रहता है अभी भी भाई। मैं शायद कभी कभी सोता हूँ तो बॉल मेरे बेड पे मेरे साथ होती है, तो हाँ, इट्स आप लाइक वेजिटेरियन है दैट। तो मतलब पैशन है तो कभी जाता है। जैसे आप सचिन का आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा कि हाँ, जब वो जी, सोता था तो बैटर बॉल होता था। तो वो जो फीलिंग है वो एक स्पोर्ट पर्सन की कभी भी नहीं जाती है। तो वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन पैशन भी फेल होता है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जी। मत आकाश लुक सो हैप्पी टुडे, थैंक यू सो मच। मती भाई एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी इस वक्त इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में दो स्पिनर्स लाइव सेशन पे हैं, एक ग्रेट। मतविंदर सिंह एंड दूसरे रवि अश्विन। और इट्स माय प्लेजर। रविचंद्र अश्विन सर। तो वहां पे भी मैं कभी कभी अटेंड करता हूँ एंड इट्स लाइक वो भी जब अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो इट्स लाइक प्रीटी मच सेम अनटिल अनलेस जब तक वो इंडिया इंडिया रिप्रेजेंट ना कर ले। तो आई थिंक उसके पहले तक हमारी सबकी जर्नी ऑलमोस्ट प्लस माइनस एक जैसी ही होती है, बट व्हेन दैट ब्लू जर्सी आपके ऊपर एक बार आ जाता है तो इट्स लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। एग्जैक्टली आकाश।
और वो हर क्रिकेटर की एक जी फीलिंग भी होती है कि हाँ वो एक ब्लू जर्सी के लिए इंडिया के लिए खेले। वो वो जी। सबका पैशन है। अच्छा मती भाई, एक चीज जो और हम बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी आपको महारत भी हासिल है। सबसे पहले आई वांट टू से जो भी एस्पायरिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, ग्रिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप, और डिफरेंट ग्रिप्स होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक स्टीरियोटाइप कोई पर्टिकुलर ग्रिप है। अगर आप ग्रिपिंग को लेके कुछ एडवाइस देना चाहे, आपके हाथ में बॉल भी मैंने देखा अब है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप थोड़ा सा अगर टिप्स दे सके उन सभी बडिंग क्रिकेटर्स को। देखिए आकाश, सीम की जो प्रॉब्लम होती है और जो ग्रिप होती है वो काफी लेफ्ट आर्म को बेसिकली इसलिए आता है कि जब एक स्पिनर का बॉल आता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल आता है, तो उसका एयर में इस तरह से होना चाहिए। मतलब अगर हमारा ये ड्रिफ्ट होता है तो राइट। किसी का ऐसे होता है, किसी का हम्म ऐसे होता है। तो जो हम एयर में जो ड्रिफ्ट का यूज होता है वो उस हम्म। लेफ्ट आर्म को नहीं दे पाता, तो उसके लिए हमारे सीम जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जी उसके लिए ग्रिप क्या होगी कि हमारे जो फर्स्ट टू फिंगर्स है उसके बीच में रखेंगे, और जो हम्म हमारी सेकंड फिंगर है उसके जो मिडल पार्ट होता है उससे हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की तरफ सीम होगा। तो जब हम्म हम बॉल रिलीज करेंगे तो हमारी जो रिस्ट है वो इस तरह से मूव होगी। तो जब हम इस तरफ से ऊपर की तरफ बॉल छोड़ेंगे तो हमारा हम्म। सीम रिस्ट के साथ फिंगर के साथ इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो जब और अगर विंड है या अगर रेवोल्यूशन अच्छा है तो वो बॉल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट आर्म सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं बोल्ड जी करके या एल जी। बिटू करके। और अगर ड्रिफ्ट के साथ उसके उसे स्पिन भी मिल रहा है तो उससे बैटर किसी भी लेफ्ट आर्म के लिए कुछ नहीं होगा मेरे। सर मतलब वन थिंग यहाँ पे, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अगर मैं कुछ नाम लूं, जैसे हमारे रविंद्र जडेजा हो गए, मिशेल सेंटनर हो गया, जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। जनरली व्हेन पेस बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाते हैं तो दे, हम इंडियंस खासकर या एशिया कंट्री के जो भी होते हैं, वो शॉर्ट बॉल करने लगते हैं। उसी तरीके से जब एशियन कंडीशन में बहुत टर्न होता है तो सारे स्पिनर्स सोचते हैं कि टर्न ही सिर्फ एक ऐसा वेपन है जिससे हमें विकेट मिल सकता है, जबकि इन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने सक्सेस में दिखा दिया। और आप भी जितना मैं जानता था कि एक सटीक लाइन एंड लेंथ और विद इन द विकेट बॉल करने का कितना फायदा होता है, वो भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर डेफिनेटली अगर हम विकेट टू विकेट बॉल डाल रहे हैं तो जैसे कि सब बोलते हैं यू मिस आई हिट है। अगर जी बैट्समैन से मिस हुआ तो डेफिनेटली बॉलर को विकेट मिलता है। और जी। उसके लिए ग्रिप में रिलीजिंग में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे कि आपने बोला कि विकेट का भी डिफरेंट होता है। इंडिया में जो विकेट है वो टर्निंग ट्रैक होते हैं, और जो अब्रॉड में विकेट्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो वहाँ पे फ्लैट विकेट मिलता है, तो वो मीडियम पेसर के लिए बहुत सपोर्ट करती है। इसीलिए तो सारे जो बॉलर है वो किक करके काफी शॉर्ट बॉल करते हैं या फिर गुड लेंथ से राइज कराते हैं, जिससे कि स्लिप में गली में वहां पे कैचेस वगैरह बहुत जाते हैं। और इंडियन जो स्पिनर होते हैं वो बॉल आगे डालते हैं, जी एलबीडब्ल्यू बॉल। और अगर कोई टेल एंडर बॉल बैट्समैन आ जाता है तो उसे आगे डालते हो और एक्स्ट्रा फ्लाइट करते हैं, जिससे कि वो मारने जाए और मिस हिट हो और एयर में जाए और बॉलर्स को विकेट मिल जाती है। तो ये थोड़ा यहाँ पे विकेट का आपने यहाँ पे आपने फ्लाइट की बात की, मैं फ्लाइट पे भी आऊंगा, बट एक और चीज उससे पहले जिस पे हम डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि मतलब भाई मैंने भी कई बार देखा कि हमने काफी पिचेस में खेला जहाँ पे टर्न बहुत होता था, बट हम्म। आपने उन पिचेस में भी काफी कंट्रोल रखा। वो कंट्रोल कैसे लाते ताकि बॉल मैक्सिमम हम बैट्समैन को खिला सके? अनटिल अनलेस अ बैट्समैन इज प्लेइंग फॉर अ डिलीवरी, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो कंट्रोल कैसे करते थे आप कि मतलब आपको स्पिन भी कंट्रोल करना है और आपको विकेट भी लेना है साथ में? आका इसका तो कोई फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जी कंट्रोल कैसे करना है। इसके लिए सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अपने टाइम पे करी है, मैंने काफी प्लेयर्स की वीडियो भी देखी थी, जी। काफी फॉलो भी किया थी। तो मेरे जो आइडल रहे वो हमेशा डैनियल विटोरी रहे, मैं उनका माय गॉड। जबरदस्त फैन था। उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, लाइव देखा है। मतलब मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स देखता था। तो मैं जब उन्हें कॉपी करता तो आप बिलीव नहीं करें, आपको भी रिमाइंड होगा कि उस टाइम पे मेरा जो एक्शन था वो डैनियल विटोरी की तरह था, और सब मुझे मतलब मेरे नाम की जगह आई डैनियल रिकॉल विटोरी दैट। कहते थे। बिल्कुल। मतलब उन्हें उनकी वीडियो देखते देखते मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उनका एक्शन, मतलब जो एक्शन था वो बिल्कुल कॉपी हो गया था। तो वो बहुत जरूरी है। फिर अगर आप जो बात बोल रहे हैं कि कंट्रोल की, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, अगर किसी भी बॉलर को कंट्रोल चाहिए, चाहे वो मीडियम पेसर हो चाहे स्पिनर हो, तो उसे सिंगल विकेट, एक स्पॉट रखे विकेट पे
उससे बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर कोई सामने बैट्समैन नहीं है, जी। आप थर्ड क्वार्टर पे जो एक बॉलर के लिए एक परफेक्ट एरिया होता है, वहाँ पे हम्म। एक कोई फिर कोई भी स्पोर्ट बना के रखे, जिससे कि जो बॉलर है उसे उसका जो आई लेवल है जो उसे देखना है, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, तो एक राइट। बॉलर को स्पोर्ट दिखे। तो ये हम्म। थर्ड क्वार्टर परफेक्ट स्पोर्ट होता है बॉल पिच करने के लिए। और अगर हम वहीं पे पिच करें तो वहां से ब्रेक भी मिलेगा, लूप भी मिलेगा, स्पिनर अगर एयर से छोड़ रहे हैं और बॉल डिप कर रहा है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो वो बहुत जरूरी है, सिंगल विकेट हर बॉलर को करनी चाहिए। एंड ऑल्सो मती भैया, मैंने आपकी किसी एक वीडियो में देखा था जहाँ पे यू वर टीचिंग अबाउट पिवट टर्न एंड साथ में जो डिलीवरी स्ट्राइड के बारे में। आई थिंक उसका भी कुछ हद तक रोल होता है कंट्रोल लाने में। हाँ आकाश, क्योंकि जब कोई भी लेफ्ट आर्म या ऑफ स्पिनर, मीडियम पेसर, कोई भी जो बॉल डिलीवर करता है, तो उसके लिए एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी को स्टेबल नहीं कर पा रहे तो हमारा जो स्पोर्ट है जहाँ पे हमें बॉल को पिच करना है, वो ऐसे मूव हो जाता है। अगर सपोज करिए मैं अपने स्टेबल हूँ और मेरा हेड गिर जाता है तो मेरी बॉडी स्टेबल नहीं है, तो मेरा जो स्पोर्ट होना चाहिए उससे फिर लेफ्ट में चला जाता है, हेड चला गया तो मेरा बॉलिंग आर्म भी उधर चला जाएगा, मेरा जी। नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो भी लेफ्ट में गिर जाएगा। तो राइट। फिर बॉडी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो अब बॉल डिलीवर करने से पहले हमारी बॉडी को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। मती भाई, आप आंसर करना चाहेंगे? किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं, रूपा फ्रॉम म्यांमार, इट्स लाइक आप ऑलराउंडर हो, यू सीम्स टू बी एन ऑलराउंडर। यस, बिल्कुल ये ऑलराउंडर ही थे, हैं अभी भी। अभी एंड आई मीन खेल रहे हैं अभी भी एक्टिवली, सो या। एंड मे यू प्ले फॉर इंडिया। बिल्कुल, वी वांट, मतलब देयर इज नेवर लेट फॉर एनी स्पोर्ट्स। या सो एंड आई थिंक इवन आईपीएल के आने से भी ये एक, मे बी एक बैकअप माइंडसेट में भी आ गया कई लोगों के, जो जिन्होंने शायद थोड़ा पहले छोड़ दिया था स्पोर्ट्स क्रिकेट को, एक दोबारा हाँ, एक बार उन्होंने भी दोबारा स्टार्ट स्टार्ट। किया है। बिकॉज यू नो दिस शॉर्ट लीग्स जो होते हैं T20, दे आर इंटेंसिव, फिजिकल चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्टिल आप एक तरीके से इंड्योरेंस अगर आप बिल्डअप कर लो तो यू कैन सर्वाइव फॉर 3-4 आवर्स। एंड शायद वो फिर जो 30-34 एज तक की होती है वो 40-45 तक भी चल जाता है। बिकॉज वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, प्रवीण तांबे भी, लाइक अगर मैं नाम लूं तो, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो टेक्निकल एरर, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज एट द मोमेंट। इट वाज सो स्मूथ अभी तक, बट थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है। आई थिंक इट विल रिजॉल्व इन अ बिट। Mati bhai, okay, I think we will have him back. Just a moment. Friends, in a while, I think अभी तक बहुत मजेदार सेशन चल रहा था। थोड़े से नेटवर्क इश्यूज हैं, एंड आई थिंक ही विल बी बैक इन अ while. You look like विराट कोहली। Wait a minute, is it for me और मती भाई? मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। सो जिसके लिए भी है, थैंक यू सो मच। And I think Mati bhai will be back in a while, friends. In the meanwhile, thank you so much for all those feedbacks in the session. Rohit Singh, best left arm and best coach. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लाइक मती भाई हैज बिन coaching for a while. It's not for like just starting. He's like for more than 5 years जो वो continuous coaching कर रहे हैं। So yeah, tell मती भैया he is the best side arm. बिल्कुल, आई थिंक आप भी एक बार फिर से हमसे बोल सकते हैं, एंड ही विल बी जॉइनिंग अस बैक सून। तो डेफिनेटली मैं उनको ये कन्वे कर दूंगा। एंड जिस तरीके से वो ही यूज टू परचेज द द zip in his deliveries, that's mind blowing. Thank you so much. Yeah, it's for Mati. Yeah, definitely. Just a moment, friends. Allow us a moment. Friends, I think there is some problem. Please bear with us for a while. And
I think he is here, but for some reasons he is unable to. Just a moment, friends. Just allow me a moment, and I will be back. Sorry, I think I just have to end the session at the moment here, and I will just restart the session in couple of minutes.